Hello dear aspirants, this is your educator on Arpita Sharma classes. From today, we will be starting environment and ecology current affairs based topics. We are going to cover urban heat island, carbon sink, zero budget natural farming. Before we resume, here is a wonderful announcement. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSC battle is here to conducted on 7th February at 11 am. Enroll now for free. Link is in the description box. Use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app. Select the goal as UPCSC. Click on the link above and enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest fortnightly competition for UPSC CSC. Extensive quizzes with 6 rounds of 10 questions, each from economy, polity, environment, science and tech, geography, and history. The questions are curated by Unacademy's best UPCSC educator. You will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you got right and know where you stand among other learners in India. Detailed video solution after every contest so that you get it right the next time. Don't miss the opportunity. Hurry up. Enroll now. Link is in the description box below this lecture. Today we will talk about the key concepts of environment and ecology. First we will talk about urban heat island, then carbon sink and then zero budget natural farming. Let us start with the topics. First topic is urban heat island. Why is this in news? Recent study from IIT Kharagpur named anthropogenic forcing exacerbating the urban heat islands in India. मतलब IIT खड़गपुर ने एक स्टडी की जिसका नाम था anthropogenic forcing exacerbating the urban heat islands in India. उसमें ये स्टडी किया कि study the difference between land surface temperature across all season, and they have studied in 44 major cities from 2001 to 17, and they have seen that in urban areas in compared to surrounding surface area, urban areas having urban heat islands. What is about study? That mean daytime temperature of surface urban areas are going up around 2 degrees Celsius in average when compared to neighboring areas. जो अर्बन एरियाज हैं वो डे टाइम में जो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहे हैं इन एवरेज इज कंपेयर टू नेबरिंग एरियाज एंड रिलेटिवली वार्मर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज. वार्मर टेम्परेचर है अर्बन एरियाज में कंपेयर टू सब्स, दैट इज सब्स आर व्हाट contain potential head hazards due to heat waves apart from pollution. Okay, so and then other researchers also noticed that similar rise in daytime temperature in Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad and Chennai. Now let us understand what is exactly urban heat island. ऐसे आइलैंड एरिया होते जहां हाई टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया. मतलब एक अर्बन एरिया जो नॉन अर्बन एरिया या फिर सराउंडिंग एरिया रूरल एरिया से सराउंडेड होगा और अर्बन एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और सराउंडिंग एरिया में कम टेम्परेचर होगा, तो ऐसे एरियाज को अर्बन हीट आइलैंड्स बोलते हैं. दिस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अर्बन एरिया एंड सराउंडिंग एरिया का वो नाइट में ज़्यादा होगा क्योंकि सराउंडिंग एरिया में रात में टेम्परेचर कम हो जाता है और अर्बन एरियाज में रात में भी टेम्परेचर हाई रहता है. और अर्बन एरियाज में जो हीट इंक्रीज हो रही थी और विंड जब वीक होती है तब टेम्परेचर डिफरेंस और स्ट्रांग होता है. अब इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है.
अब इसमें देखना है टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरियाज और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। लैक ऑफ एवर ट्रांसपिरेशन मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। लैक ऑफ वेजिटेशन और वाटर बॉडीज में जो रिडक्शन हो रहा है सिटीज और अर्बन एरियाज में। बैड एयर क्वालिटी है, किसकी वजह से, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो रहे हैं और व्हीकुलर पॉल्यूशन हो रहे हैं। फिर आता है हाई हीट होल्डिंग कैपेसिटी, जो हाउसेज और इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आसपास वो अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं। और बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज हो रहा है वो इंसुलेटिंग और होल्डिंग इन हीट में अच्छा होता है, जिसके कारण जो सराउंडिंग है वो गर्म या फिर वार्म हो जाती है। अब आता है लो एल्बेडो मतलब कम से कम ग्रीन कवर है और जितना से ज्यादा एब्जॉर्प्टिव मटेरियल रहेगा वो हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करेगा। अब है जो टॉल बिल्डिंग्स प्रेजेंट रहती हैं वो स्ट्रक्चर हिंडर करती हैं विंड मूवमेंट का और डिसिपेशन ऑफ हीट का और ग्रीन हाउसेस गैसेस एंड अदर पॉल्यूटेंट्स में। अब आता है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज कॉजेज जनरेशन ऑफ हीट इन अर्बन एरियाज। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। फॉर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एसेट्रा। मोर एनर्जी कंजप्शन फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग। अब ये आर्टिफिशियल कूलिंग में कैसे कौन कौन चीजें आ सकती हैं, यूज ऑफ एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एसेट्रा। हेल्थ इंपैक्ट बोथ ह्यूमन एंड पेट्स पे हो सकता है और हाई रिस्क ऑफ हैवी रेनफॉल एंड फ्लैश फ्लड्स that is caused by heavy or excessive rainfall in short period of time. Impact on plants or greenery. So this is all clear. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कार्बन सिंक। अब ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी INDC इंडिया ने खुद के बारे में कंट्रीब्यूशन करने का सोचा कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से लेके 3.5 बिलियन टन्स का। बाय एडिशनल फॉरेस्ट या ट्री कवर इंक्रीज करेंगे बाय 2030, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये कहां पे हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 में। अब समझते हैं व्हाट इज कार्बन सिंक। इट इज पंपिंग कार्बन इनटू सिंक्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। सिंक जैसे कुछ मटेरियल जो पुल होते हैं इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसे कहते हैं सिंक्स। सिंक्स नेचुरल और मैन मेड भी होते हैं। ओशन, फॉरेस्ट और सॉइल एक्ट एज अ नेचुरल सिंक। वहीं डिप्लेटेड ऑयल रिजर्वायर एंड मैनेबल माइंस एक्ट एज अ मैन मेड सिंक। लोग उस साइट से ऑयल लेते हैं और लीव द साइट अबंडेंट, सो कार्बन कैन बी स्टोर्ड इन द साइट। Some mines cannot be mines because of rock structure and save the carbon inside that. मतलब कुछ माइंस को माइंस नहीं कह सकते उसके रॉक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कार्बन जमा कर रखा होता है। नॉर्मली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हैव लॉट ऑफ ऑयल एंड गैस लेते हैं लैंड और मराइन सिस्टम से। और नॉर्मली होता क्या है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कार्बन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और प्लेस करते हैं इन सब एरियाज में फॉर ईयर्स फॉर रिकवरी ऑफ ऑयल इनसाइड लैंड ऑफ वाटर। अब समझते हैं ये नेगेटिव एमिशन क्या होता है। अब जब एमिशंस की बात करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे कार्बन सिंक्स जैसे प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस को नेगेटिव एमिशन कहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो रहा है और ये आजकल क्लाइमेट नेगोशिएशन में बहुत यूज हो रहा
क्योंकि अगर टेम्परेचर को लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है पर एंड ऑफ द सेंचुरी तो नेगेटिव एमिशन होते हैं। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और व्हीकल्स और अदर इंडस्ट्री, उससे ज़्यादा हमें रिमूव करना होगा एटमॉस्फेयर से, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एमिशन। अब कार्बन सिंक ग्रीन कार्बन भी होता है और ब्लू कार्बन भी होता है। अब बात करते हैं पहले ग्रीन कार्बन की। फॉरेस्ट कार्बन सिंक, जिनको ग्रीन कार्बन सिंक भी कहा जाता है, बट एट द सेम टाइम negative emissions are not excuse to delay action in reducing fossil fuel emission. It is because carbon absorb जो trees के द्वारा होता है वो डायनेमिक होता है। फॉरेस्ट कार्बन एटमॉस्फेयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ट्री जैसे कार्बन के बीच का कॉन्टिन्यूस साइकिल उसे कहते हैं फॉरेस्ट कार्बन साइकिल। इसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा होगा। जो प्लांट्स हैं बाय फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, बट एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर देते हैं। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे कार्बन सिंक कहते हैं। दूसरा है ब्लू कार्बन। कार्बन जो ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम से कैप्चर होते हैं उन्हें ब्लू कार्बन कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा जो कार्बन कैप्चर होती है ओशन, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम मैंग्रोव, सॉल्ट मासेस, सी ग्रासेस एंड पोटेंशियली एल्गी। ओशन वेजिटेटेड हैबिट्स 0.5% ऑफ सी बेड से लेस कवर करते हैं। वो 50% से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 70% ऑफ ऑल कार्बन स्टोरेज इन ओशन सेडिमेंट्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एब्जॉर्ब करती है, तभी ब्लू कार्बन को इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर कार्बन मिटिगेशन। अब बात करते हैं कि ब्लू कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। जो अपना अर्थ सरफेस है वो कवर करता है 2/3 ऑफ वाटर, हेंस कोस्टल सिस्टम बिकम्स मोर रिलेवेंट फॉर कार्बन सिंक। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इट रिड्यूसेस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज कोस्टल इकोसिस्टम कैन ट्रैप कार्बन फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ये नेगेटिव इंपैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि जो कोस्टल इकोसिस्टम में कार्बन ट्रैप हो रही है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब दूसरा है एस्टिमुलेट पॉल्यूटेंट्स लाइक, मतलब कुछ पॉल्यूटेंट्स को हटाता है जैसे heavy metals, nutrients, suspended matter, which will be helpful for improving water quality. Third is prevent eutrophication. Eutrophication क्या होता है? That is excessive nutrients in a lake or other body of water usually caused by a runoff of nutrients. Fourth is provide jobs and income to local people by improving the health of fisheries ecosystem. Fifth is that is improve tourism industry as well as materials for building or ingredients for medicines. So all is this about blue carbon importance. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये न्यूज में क्यों देखा गया? क्योंकि 2021 एंड 2022 के बजट में इसका जिक्र हुआ है। टू प्रमोट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स एंड देयर बाय डबल देयर इनकम बाय 2022। मतलब रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स करना है और उनकी इनकम को डबल करना है 2022 तक। और जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग था ये 2019 के बजट में भी इंक्लूडेड किया गया था। अब जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टर्म है वो किसके द्वारा कॉइंड किया गया है? सुभाष पालेकर, जो कि महाराष्ट्र के फार्मर है, और उनके एफर्ट जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला में भी स्प्रेड हुए हैं। ये स्टडी जो हुई आंध्र प्रदेश में, दैट हैज कंपेयर्ड द कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल इनपुट्स टू फाइंड द कॉस्ट। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का इनपुट जो हुआ पर एकड़ के हिसाब से हुआ ₹1706, और जो नॉन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो थे वो हुए फॉर पैडी क्रॉप दैट इज 5361। अब जो
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड्स जो थे वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं इन सेविंग रुपीज 3655 per acre. Andhra Pradesh rolled out an ambitious plan to become India's first state to practice 100% natural farming by 2024. आंध्र प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट बना जो कि 100% नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहा है बाय 2024. अब बात करते हैं कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है. ये एक टाइप का मेथड है जिसमें केमिकल फ्री एग्रीकल्चरिंग होती है. मतलब कोई केमिकल यूज नहीं होता है और इसमें ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट किया जाता है. इसका एम ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको नीचे लाना और नियरली मतलब जीरो कर देना और रिटर्न टू अ प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग. और ये क्लेम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव इनपुट की ज़रूरत नहीं है. एक्सपेंसिव इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंटेंसिव इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है. अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो प्रमोट करता है सॉइल एरेशन को, मिनिमल वाटरिंग को, इंटरक्रॉपिंग को, बंड्स को एंड टॉप सॉइल मल्चिंग को. अब बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. पहला है जीवामृता. इसमें जो होता है फ्रेश काउ डंग, एजेड काउ का यूरिन जो कि इंडियाज इंडिजिनियस काउ ब्रीड की होनी चाहिए. जैगरी मतलब गुड़, पल्स फ्लोर, वाटर, सॉइल का मिक्सचर यूज होता है जो कि फार्म लैंड पे अप्लाई होता है. अब आता है बीजामित्र. ये होता है मिक्सचर नीम लीव्स एंड पल्प्स का, टोबैको का, ग्रीन चिलीज का जो कि प्रिपेयर होता है फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट. यूज होता है फॉर ट्रीटिंग सीड्स. अब आता है आच्छादना दैट इज मल्चिंग. ये प्रोटेक्ट करता है टॉप सॉइल को ड्यूरिंग कल्टीवेशन और ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है बाय टिल्टिंग. अब आता है वापापासा. ये कंडीशन होती है वेयर जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और ये हेल्प करता है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने में. So hope you understand environment and ecology based topics today. Thank you.